हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर हम लोग आज दोबारा से लेकर आए हैं आप लोगों के पास नो योर फार्मासिस्ट का सेकंड एपिसोड। इससे पहले डॉक्टर राकेश सुमानी सर हम लोगों के पास आ चुके थे और उन्होंने ही ये एक नया कंसेप्ट दिया है हम लोगों को कि स्कूल ऑफ क्रिएटिव स्टडीज और स्कूल ऑफ फार्मेसी साथ में मिलकर एक ऐसा शो लाए जिसमें फार्मासिस्ट की बात हो, उनकी डेली लाइफ की बात हो, उनके साथ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसकी बात हो और किस तरह से फार्मेसी को लेकर कई सारे तरीके के मिसकंसेप्शंस हैं या मिथ हैं, उन आम सवालों के भी जवाब आप लोगों तक पहुंचे। आज मेरे साथ एक और ऐसी ही शख्सियत है स्कूल ऑफ फार्मेसी से जिनका नाम है डॉक्टर मनोज एस दिक्कतवार। फार्म डी और पीएचडी उन्होंने कर रखा है। उनके बारे में कुछ बात बताता हूं और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला उनके साथ। डॉक्टर मनोज एस दिक्कतवार होल्ड्स फार्मा डी degree and PhD in pharmacy practice. He has completed his Pharm D with distinctions from prestigious Bharati Vidyapeeth, Pune, Maharashtra and PhD from Parul University, Vadodara, Gujarat. He is currently working as Associate Professor in the Department of Pharmacy and Practice, D.Y. Patil University, School of Pharmacy, Naval Navi Mumbai, Maharashtra. He has 6 years and 6 months of professional experience in the field of academics and research. During his work tenure, he has handled various academic as well as administrative responsibilities in various institutes and pharmacy practice department. He is recipient of grant from SOIC Student Open Innovative Challenge, Government of Gujarat to perform research work on cancer. Wow, wonderful, sir. He has authored 26 research reviews, articles in Index Journal, one book and one book chapter into his credit. He is antimicrobial stewardship enthusiast and his major research areas include antimicrobial resistance, pharmacoepidemiological studies जिसके बारे में मैं खुद जानूंगा क्योंकि सवाल इतना कठिन है, वो नाम ही इतना कठिन है, and various clinical studies. Sir, good morning. How are you? कैसे हैं आप सर? Very warm welcome in our Good morning sir. Good morning sir. बढ़िया सर. ओके, सवालों का सिलसिला सर शुरू करता हूं आपके साथ. व्हाट आर द क्रोनिक डिसीज कंडीशंस एंड थ्रो सम लाइट्स ऑन करंट स्टेटस ग्लोबली. सर तो बेसिकली क्रोनिक डिसीज मतलब ऐसे डिसीजेस जो कि उनका एक बार पेशेंट्स में हो गए, जैसे हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, देन देयर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. ऐसे डिसीज कंडीशन दे आर द पेशेंट नीड्स टू टेक द मेडिसिन फॉर अ लॉन्गर टाइम. And there are more complications. The treatment is a lifelong treatment, and the patient needs to take the various precautions while during the treatment and all. So अभी आज तक हम global status देखने जाए तो डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है. So in that India is one of the carries the global burden of diabetes, and asthma is also increasing due to the air pollution and all this thing. So these are the some current status in the globally, like these are the 4 disease conditions are there, and the patient needs to take the medicine for a lifelong treatment. These are the chronic disease conditions. Okay sir. Second one, what are the common problems faced by the patients during chronic disease conditions? जैसे कि ये ट्रीटमेंट जो है उनको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, like the 1 year, 2 year, like the diabetes में जाएंगे तो they until the last day of their life they need to take the medicines. So there are some common problems are there. The first problem is side effects. पेशेंट को बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो द 3 टर्मिनोलॉजीज होती है. साइड इफेक्ट एक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक है और एडवर्स इफेक्ट. तो उसमें से साइड इफेक्ट इज मोर कॉमन. तो दवाई लेने की वजह से ऐसा होता ही है. हाँ, दवाई लेने की वजह से होता ही है. जैसे हम देखने जाएंगे डायबिटीज के कुछ मेडिसिन है जो पेशेंट्स लेता है, द पेशेंट फील लाइक गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है. कुछ मेडिसिन है जैसे सम एंटीबायोटिक्स है जो कि हम रोज यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं. तो जब एंटीबायोटिक्स हम जब लेते हैं तो डायरिया होना, स्टमक पेन होना, देन देयर इज इसमें से और कुछ क्रोनिक डिसीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसे डिसीजेस है, उसमें हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिसीज है, इट इज अ क्रोनिक डिसीज कंडीशन नाउअडेज रिलेटेड टू लाइक द जॉइंट्स एंड ऑल. उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन से हम जब लेते हैं द पेशेंट उस साइड इफेक्ट्स इतने मतलब horrible होते हैं कि like the patient needs to suffer for a lifelong due to their side effect. So these are some common problems faced by the patient during the chronic disease management and all. Okay sir. As a pharmacist, what are the key responsibilities in the management of chronic disease conditions? Because you actually know. So as a pharmacist, and the pharmacy is the main integral part of the management.
सो फर्स्ट इज हमें 5 एक ऐसे कर्तव्य बोल सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट के, कि जब हम फार्मासिस्ट पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनको मेडिसिन ऐसी देनी चाहिए कि द मेडिसिन शुड बी इन अ राइट डोज, इन अ राइट डोसेज फॉर्म, एट द राइट टाइम ऑफ इंटरवल, फॉर अ राइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर अ राइट इंडिकेशन। मतलब ऐसी मेडिसिन हमें देना चाहिए फॉर क्रोनिक डिसीज कंडीशन, ताकि वो मेडिसिन डिसीज के लिए बराबर होनी चाहिए, वो डोज पेशेंट को बराबर होना चाहिए, उसका डोसेज मतलब कितने mg लेना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम। देन उसका टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब खाने के पहले, खाने के बाद या खाने के साथ लेनी। मतलब डायबिटीज ऐसा क्रोनिक डिसीज कंडीशन है, उस पे डिपेंडिंग ऑन द ब्लड शुगर लेवल पेशेंट नीड्स टू टेक द मेडिसिन लाइक द बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग द मील। सो ये सारे 5 हमें पहला पॉइंट यही है कि हमें 5 पॉइंट से ध्यान रख के पेशेंट को मेडिसिन देना है। दूसरा है द आफ्टर प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन, पेशेंट घर जाके मेडिसिन कैसे ले रहा है, लाइक द whether they are following the guidelines or not, whether they are improving their quality of life or not, because patient medicine ले रहा है and side effects बढ़ते जा रहे हैं and sugar level normal नहीं हो रहा है, yes. so that doesn't matter. So आजकल का pharmacist का concept यही है. Before 10 years the pharmacist was different, like their role and response were different. Definitely. But in the last 10 to 15 years the era has been changed. Definitely. The pharmacist needs to do the lot of more work, like the patient counseling here. Yes, yes. There are so much complex medicine has been introduced into the market. Like the पहले थोड़े कम medicines थे, आजकल थोड़ा patient का भी physical, like the composition has been changed, so there are so many adverse drug reaction and side effects are there. Yes, yes. So as a pharmacist our responsibility is to counsel the patient. The nowadays the patient counseling is very very important. जैसे मैं आपको example दे दूं कि patient counseling का, जब हम patient मेडिसिन शॉप पे जाता है, patient will take the medicine of the antacid, like the any proton pump inhibitor, pantoprazole, Bandy, Rabes and all. तो direct pharmacist also lots of challenge and all, heavy workload and all. तो during that time जब counseling नहीं होती है तो patient को क्या बोलती है कि खाने के पहले दवा लेना है, बट पेशेंट क्या करता है, घर जाके खाने के पहले दवा लेता है, within 5 minutes they wish to took the meal. बट ऐसे नहीं करना चाहिए. द पेशेंट काउंसलिंग में क्या होता है कि पेशेंट खाने के पहले मतलब वो दवा आपको 30 मिनट्स पहले लेना चाहिए, 30 मिनट्स. सो दिस इज द एक्चुअल रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द मेडिकेशन मैनेजमेंट. सो देयर आर सेवरल methods are there, several techniques are there, how to counsel the patient, how to guide the patient and all these things. So ये सब कुछ चीजें हमें ध्यान रखना है in the chronic disease management. Wow, wonderful, nicely explained sir. काफी सारे लोगों को इससे बहुत ज़्यादा चीजें जानने को मिलेंगी अब. How can pharmacists collaborate with the other healthcare professionals to improve patient outcomes? Yes. So patient outcome is the when the patient visits the hospital, तो पेशेंट की बीमारी या जो डिसीज है वो क्योर निकल जाना या रिकरेंस ना होना, इज नथिंग बट अ गुड हेल्थ का आउटकम. तो जब हम फार्मासिस्ट जब काम करते हैं इन द हॉस्पिटल एंड द पेशेंट कुछ विजिट करता है हॉस्पिटल में, द फार्मासिस्ट नीड्स टू कोलैबोरेट ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, patient visited a hospital due to the bacterial infection. Okay. So at that time, doctors को इतना assumption रहता है. So there are lots of methods are there. While prescribing antibiotic, आजकल antibiotic कैसे देते हैं, वो मैं quote करना चाहता हूँ यहाँ. While taking the antibiotics, always complete the course of antibiotic. Nowadays, what happens? Like the एक दवा ली और आपको लगता है कि बीमारी सही होगी तो आप कंटिन्यू नहीं करते. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो जड़ से खत्म नहीं होती, वापस आती है बीमारी. वापस आती है. एंड दिस इज नथिंग बट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. यस सर. एंड दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज ग्रोन वेरी ड्रास्टिकली इन द लास्ट 10 years. The reason is only one is the misuse of antibiotic. Oh yes, yes. So I will confirm that like the always complete the course of antibiotic, yes, which is very very important to curtail the antibiotic resistance. Because क्या है, जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक के चॉइसेस है बहुत सारे, बट उसका डेवलपमेंट एंड द रिसर्च उसको बहुत कम है. सो व्हाट एवर द एंटीबायोटिक इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री वी नीड टू यूज द जुडिशियसली. सो एग्जांपल देना यही है कि टू कोलैबोरेट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. जी. सो डॉक्टर ने जब एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं तो एट दैट टाइम we need to take consideration of the microbiologist also. So every hospital में microbiologist रहते हैं, तो उनका सजेशन लेना है. देन वाइल एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ एनी मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होती है, वी नीड टू फॉलो द स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन, लाइक द वंस अ डे, एग्जैक्ट वैसी टाइम पे आपको मेडिसिन एडमिनिस्टर करना होता है. सो एट दैट टाइम वी एज अ फार्मासिस्ट वी नीड टू कोलैबोरेट विद द नर्सिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर द प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट. देन देयर इज वन वर्ड इज द एपिडेमियोलॉजी. तो वाइल प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक, सो हर एक मेडिसिन का कितना रोल है, क्या रोल है, कितना यूज हो रहा है, विच एंटीबायोटिक इज वाइडली यूटिलाइज. फार्माकोएपिडेमियोलॉजी मतलब हर एक मेडिसिन कितना जा रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट आउटकम एंड ऑल. सो अच्छा, सो ये एक्चुअली है मेजरमेंट ऑफ मेडिसिन इन द एवरी हॉस्पिटल. लाइक द हम जब देखने जाएंगे तो एंटीबायोटिक इज अ टॉप मोस्ट मेडिसिन. उसके बाद आता है NSAID जैसे पेन किलर्स एंड ऑल. तीसरा आता है जैसे हमारा एंटासिड्स एंड नाउअडेज. फोर्थ वन इज मल्टीविटामिन. सो दिस आर द data is there and this data will be utilized for the hospitals and the pharmacy professionals and all to order the medicines and all. Nicely explained, sir. What are the various technological tools are available to enhance patient outcomes? Yes, so nowadays this is the era of the artificial intelligence. Yes, definitely. And various technological tools are available in the last 5 years. Like जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने in the last 2 years in the speech of the central Union budget, it was said that like telemedicine. क्योंकि during COVID period, what happened, like there are so many diabetes patient was there, and उस गवर्नमेंट ने रेगुलेशन जारी किए थे कि डायबिटीज पेशेंट्स बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं जा सकते. तो एज रूल एंड रेगुलेशन, एज पर द कॉमन प्रिस्क्राइब गाइडलाइन, डायबिटीज पेशेंट को every month, every 6 months, depending on their age criteria, they need to visit the hospital. But ऐसे कोरोना के टाइम नहीं हुआ. That's why so many diabetes patients suffers a lot. मतलब बहुत सारे पेशेंट रीच नहीं हो पा रहे थे हॉस्पिटल को. तो एक नया कंसेप्ट आया है टेलीमेडिसिन. टेलीमेडिसिन मतलब ऐसा है, दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी. सो आजकल तो ग्लूकोमीटर हर एक के घर में ही है. they need to use the glucometer to check the blood pressure. They need to check the blood glucose level, record the reading, and this reading will be directly fetched to their registered medical practitioner. तो टेलीमेडिसिन ऐसा कंसेप्ट है कि आप पेशेंट घर बैठ के ही ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेगा, एंड डायरेक्टली through the technology they can transfer the data to the healthcare professionals. By analyzing their tablets and their blood glucose value, doctor will analyze and prescribe the medication for their better healthcare. So ऐसे बहुत सारे हैं. जैसे StroHope करके एक ऐप है which will be utilized for the stroke patient rehabilitation. StroHope is there. Then there is lots of free of cost technological tools are there, like the drugs.com. Then there is a Medscape. ये गूगल में आप सिंपली drugs.com चेक करोगे तो आपको वहाँ पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा. लाइक उसका डोज क्या है, कब लेना चाहिए, उसका मैकेनिज्म क्या है, बॉडी में जाके क्या करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज टेक्नोलॉजी से है. सो विच विल बी यूटिलाइज फॉर द क्रोनिक डिसीज मैनेजमेंट लाइक द डायबिटीज, अस्थमा एंड ऑल दिस थिंग. Oh, wonderful. Nice, sir. अब एक और क्वेश्चन सर, हाउ फार्मासिस्ट एड्रेसेस इश्यू रिलेटेड टू मेडिकेशन एडहेरेंस? यस, मेडिकेशन एडहेरेंस मतलब ऐसा है, सपोज आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है, सो एट दैट टाइम वो मेडिसिन डॉक्टर ने जैसे दिया है वैसे लेना, इट इज नथिंग बट मेडिकेशन एडहेरेंस. बट देयर आर सो मेनी कॉमन प्रॉब्लम्स आर देयर, लाइक द आजकल ड्यू टू द इकोनॉमिकल कंडीशन patients are not able to take the adequate dosage forms. Right. तो patient half of the medicines लेते हैं, बाकी का आधा वो लेते नहीं है, which will impact again the patient को recurrence होता है, मतलब वो same disease patient को हो जाना. जैसे हम common problem बोल जाए तो urinary tract infection है, which is the most common health problem faced by the female patient. urinary tract infection. Yes. उसमें एंटीबायोटिक है, UTI. हाँ UTI. तो कुछ एंटीबायोटिक से उसको पेशेंट को 14 डेज 7 डेज मिनिमम 14 डेज 21 डेज लेना पड़ता है. सर एक ही बस सवाल है, अगर ऐसे में अब 2 तरह की दवाई आती है आपको पता है सर, एक ब्रांडेड और एक जेनरिक. यस. तो उन पेशेंट्स के लिए क्या, जैसे कि अभी आप ही ने बताया कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो एटलीस्ट ब्रांडेड दवाइयों के लिए ना जाए, जेनरिक ही ले लें. कम से कम सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें सस्ते मिलती है, कई दवाएं तो मुफ्त मिलती है कूपर जैसे हॉस्पिटल्स में.
यस ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांडेड और जेनेरिक मेडिसिन में कुछ डिफरेंस नहीं होता है. सो इट डिफरेंस इज ओनली द मैटर्स इज प्राइस एंड ऑल. सो मैं कहना चाहता हूँ कि पेशेंट को अगर आपको ब्रांडेड दवा की वजह से आप जेनेरिक जाना चाहते हो एंड यू आर टेकिंग द फुल डे कोर्स एंड ऑल व्हाटएवर द डे 14 डे 7 डे 10 डे एंड ऑल, सो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है. सो दे कैन यूज एंड द जेनेरिक मेडिसिन्स एंड नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन स्टार्टेड several generic medicines. They can go for the generic medicines and complete their course and all. मतलब दवा लेना जरूरी है, सही दवा लेना जरूरी है and कम कीमत की हो. Yes. जी बिल्कुल. ये थे हम लोगों के साथ डॉक्टर मनोज. उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई, बहुत खूबियों के साथ उन्होंने जवाब दिए और उन्होंने आई थिंक बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स दूर की होगी, उनको अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई होंगी. हम लोग दोबारा आप लोगों के पास आएंगे नो योर फार्मासिस्ट में 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर. तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच.